یہ جو مزاح کا دور ہے، یہ ایسے ایسے لوگ اس وقت مزاح لے کر رہے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ یار یہ مزاح نگار ہے، یعنی ریئل مزاح نگار۔ اب میں یہاں کے اپنے ظاہر وہ میرے دوست ہی ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں، جیسے انور احمد علوی ہے، جس میں ہمارے شجاع الدین غوری صاحب ہیں، جس میں ہمارے وہ ڈاکٹر جو آج کل برطانیہ میں بیٹھے ہیں حنیف شیوانی صاحب ہیں، یا ہمارے یہاں ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب ہیں، اب جبکہ ان کی زبان بھی اردو نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، تو یہ آ رہا ہے، تو یہ کیسے ان کو پتہ چلا؟ انہوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ایسے ہو گئے کہ ان کو کامیاب دوسروں نے کہا کہ نہیں آپ نے بہت اچھا لکھا، اور اب ہم نے پڑھا تو لکھا نہیں یار یہ تو بڑی دور کی کوڑی لائے۔ تو یہ تو چلتا رہے گا۔ اچھا جامی صاحب یہ بتائیے، آپ کی جو کتاب آئی اس میں میں نے دیکھا کہ ایک طویل فہرست ہے کتابوں کی، جی ہاں، تو آپ اپنی جو کتابیں چھپ چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ مجھے دکھائیے گا ذرا، مجھے یاد نہیں رہتی اپنی چیزیں۔ اب دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر اپنی تصانیف کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا پہلا شعری مجموعہ روزن خیال یہ 1992 میں شائع ہوا تھا، اور یہ شائع نہیں ہوتا کیونکہ میں کبھی اس طرح سے مالی طور پہ کبھی خوشحال نہیں رہا، بس اپنا گھر چلایا اور عزت سے روٹی کمائی۔ تو یہ روزن خیال چھپا تھا ہمارے کینیا میں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ایک شاعر تھے ساحر شیوی صاحب، تو ان کا ادارہ تھا، انہوں نے کہا بھی آپ مجموعہ شائع کریں، ہم شائع کریں گے، آپ تیار کریں۔ تو کوکن اردو رائٹر گلڈ نیروبی، اس کے تحت وہ شائع ہوا، پھر انہوں نے مجھے لانچنگ کے لیے نیروبی بلایا، تو یہ 1992 میں یہ مجموعہ آ گیا۔ پھر صاحب آگے چلتا گیا تو پھر یہ سینریو آ گیا 2000 میں، تو پھر میں نے کہا کہ 2-3 سال میں مجموعہ اتنا ہو گیا کہ میں نے کہا یہ تو مجموعہ تیار ہو گیا، تو میں نے اس میں بیوی سے چھپ کر 2003 میں یہ منظرعام پہ لایا۔ پھر میں چلا گیا تھا، میں نے 3 سفر کیے ہیں برطانیہ کے، 3 سفر کیے ہیں انڈیا کے، اور 1 سفر کیا تھا نیروبی کا۔ پہلا سفر میرا نیروبی کا تھا جہاں مجھے کتاب کی رونمائی کے لیے بلایا تھا۔ یہ سارے سفر نامے میں لکھتا، مگر روزگار میں مصروف رہا کیونکہ میری نوکری کو ایسی تو ہے نہیں، شاہانہ نہیں تھی، اگر کسی ادارے کا ہیڈ ہوتا تو شاید وقت بہت ہوتا میرے پاس۔ تو دوستوں نے وہاں جہاں میں ہو کے آیا تھا لندن، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سفر نامہ لکھیے، تو یہ سفر نامہ چھپا تو 2011 میں ہے، مگر یہ سفر تھا 1998 کا۔ میں نہیں لکھنا چاہ رہا تھا، چاہ بھی رہا تھا مگر مجھے وقت بھی نہیں مل رہا، سیدھی بات یہ۔ تو 2011 میں یہ سفر نامہ آ گیا، انگلستان خدا کی شان۔ پھر اس کے بعد یہ سیمائی سفیر اردو نکلتا تھا، لیوٹن برطانیہ تھے، جس کا میں مدیر بھی تھا، اور تو اداریے میں لکھا کرتا تھا۔ تو وہ 11 سال تک وہ چلا، جس کے 44 اداریے میں نے لکھے تھے۔ تو اس پہ میری کتاب کا نام ہے مقالات افتتاحیہ، یہ آیا تھا 2013 میں۔ پھر میں نے جو تحریریں لکھتا تھا کتابوں پہ، شخصیات پہ، تو اس پہ میں نے پہلا خاکہ لکھا تھا قمر احمد عثمانی صاحب پہ، جن کو ہم ماموں میاں کہتے تھے، یہ انور احمد علوی کے ماموں تھے، اور یہ ظفر احمد عثمانی صاحب کے صاحبزادے، تو ان پہ لکھا۔ پھر ایاز صدیقی، حزین صدیقی، ان پہ لکھا، پھر اپنے دوست تھے، اس طرح میں لکھتا چلا گیا، مطلب کسی نے کہا نہیں، بس مجھے خیال آیا تو میں نے لکھ دیا۔ تو یہ 17 مشاعر ادب پہ میں نے خاکے لکھے، اس کا نام رکھا معراج محبت، یہ 2021 میں آیا۔ پھر میں نے سریر میں سریر ماہنامہ سریر فہیم اعظمی صاحب کا، انہوں نے مجھ سے سالنامے کی کوئی غزل مانگی یا کوئی تحریر مانگی، تو میں نے ایک تحریر ان کو دے دی۔ اس کے بعد فون آیا کہ یار یہ تم نے کیا لکھ دیا؟ میں ڈر گیا، میں نے کہا پھاڑ کے پھینک دیجیے، پتہ نہیں کیا لکھ دیا، کہ نہیں یہ تو بہت اچھی چیز لکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا کہاں؟ تو کہنے مطالبہ ہے۔ میں نے کہا صاحب انشائیہ مزاحیہ سب سنا، یہ مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ انشائیہ اور مزاحیہ کے درمیانی صنف ہے۔ اچھا تو یہ مطالبہ ہے؟ میں ہاں۔ تو انہوں نے چھاپ دیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے ہمت دی تو میں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا، مگر مجھے میرا ایک دوست فراست رضوی وہ آتا تھا اور کسی کے بارے میں مجھے اپنے جیسے اس کی طبیعت ہے شگفتہ مزاجی، وہ کسی کے بارے میں ایسی مجھ سے بات کرتا تھا، جیسے کسی کو بولا یہ ربڑ کا چوہا ہے، کسی کو بولا یہ بے لوث منافق ہے، کسی کے بارے میں کیا کہ منکسرانہ تکبر
हाँ इस तरह से मैंने कहा अच्छा किसी के बारे में रख के ये, अरे मैंने कहा ठीक है, वो सुना के चले जाए, मैं दूसरे या तीसरे दिन वो लिख लूँ अफसानचा या मुतायबा, और उनको सुनाऊँ, वो कह रहे यार तुम तो लिख लिया, ये शाया करेंगे। फ़हीम आज़मी साहब के लिए उसने लिखा था मोम का भेड़िया। हाँ, तो मैंने मोम का भेड़िया और रबड़ का चूहा और अपने ऊपर रखा मैंने खुद काट का उल्लू, तो इनको मिला के मैंने मुतायबा लिखा, वो छप गया शरीर। कह रहे यार उन्होंने तो छाप दिया। मैंने कहा यार उसमें किसी बुराई थोड़ी की है, और उसमें उसने भी तारीफ़ की थी उनकी, और मुझे भी कि आलिम है, पढ़े लिखे, फ़लसफ़े के माहिर हैं। और उसके बाद 3 कहानियाँ लगातार ऐसी हुई कि जो देखा जाए तो अलग अलग भी मुकम्मल हैं, और तीनों को पढ़िए तो फिर वो एक लंबी कहानी मंदिर यहाँ पे आती है, जिसको मैंने शुरू में रखा था। तो उसका एक नाम था आखिरी कहानी का टेलीफोन बंद हो गया, तो मैंने इसी नाम से 2021 में लाया। उसके बाद ये फिर मैंने इससे पहले ये तस्करा लिखा, तस्करा मिर्ज़ा निगारान कराची, ये 2025 में आ गया, और ये मेराज तबस्सुम ये 2025 में आ गया। अब इसके बाद 3 किताबें मेरी और हैं जो मैं उसमें मुकम्मल कर रहा हूँ। वैसे तो खैर बहुत हैं जो उसके पीछे मैंने दी हैं, और मैंने जो तालीफ़ की है वो 8 किताबें हैं। मसलन डॉक्टर खुर्शीद खावर अमरोवी की फ़न व शख्सियत पे, मुशफ़िक़ ख्वाजा के ऊपर, सावन में धूप का खालिक लंदन में रहते हैं सागर, और ख्वाजा तारिक महमूद लाहौर में रहते हैं तर्जुमान उर्दू। डॉक्टर जमील जालवी पर लिखा था अहमद हमदानी साहब ने मज़ामीन मुख्तलिफ उनकी जहतों पे, वो जालवी साहब रखे बैठे थे। मैंने कहा हज़रत उनकी मेहनत को तो ज़ाया ना करें। तो अच्छा मियाँ ले जाओ तुम छाप दो। फिर मैं लाया, फिर हमदानी साहब से मिला, फिर उनको दिखाया, फिर ये आ गया डॉक्टर जमील जालवी असरी आ गई का एक तनाजुर। और खुशी इस बात की हुई कि हमदानी साहब की मेहनत ठिकाने लगी। फिर उर्दू के अशार की ये 3री जिल्द आई है 2021 में, पहले आई थी सन तो याद नहीं, फिर उसके बाद उसको मज़ीद अजाफे के साथ जी तीसरा एडिशन। और फिर ये हमारी कराची में है प्रोफेसर रईस फातिमा, उनकी फ़न और शख्सियत पे मैंने 23 में किया। और एक हमारे इंडिया में शायर थे बहुत काजी ग़ुलाम साबिर कदीरी संदेलवी, उनके नवासे ने वो इंडिया से मंगाई, कहने वहाँ पर एक ही कापी बची है, तो मुझे दिया, तो मैंने तीनों को यकजा करके कुलियात साबिर के नाम से। तो ये मेरी तालीफ़ात हैं, और बाकी जो ज़ेर तमा हैं और ये वो काफ़ी हैं। मतलब कहने का ये है कि एक बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यानी जितनी असनाफ़ अदम है, मैं इसमें कूदा नहीं हूँ। जब मुझसे कहा गया कि लिखो तो मैंने लिखा, और उन्होंने पसंद कर दिया तो मैंने कहा ठीक है ये मैं लिख सकता हूँ। कहानी हो, अफसाना हो, इसी तरह तबसरे मैंने बहुत किए हैं। दायरे हसनैन काज़मी साहब, दादा भाई का रिसाला था जिसके वो मुदीर थे, वो मुझे दे देते, यार जामी मेरे पास काम बहुत है, तुम तबसरे कर लो। मैंने कहा सर मैं कर लूँगा। हाँ कर लोगे। फिर वो तबसरे किए, वो शाया हुए। हुसैन अंजुम साहब का तुली अफ़कार, मैं वहाँ जाते कहते यार इतने ढेर लगा हुआ है, ले जाओ यार इसमें जो अपनी पसंद, वो मैं 10-12 उठा लाता था, तबसरे करता था। पता चला मैं तबसरे भी कर सकता हूँ, अफसाना भी लिखा तो वो भी लिख सकता हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ। रुबाई मैं नहीं कह सकता, नज़्म मैं नहीं कर सकता, मज़ाहिया गज़ल मैं नहीं कह सकता, ये मैं बबांग दोहल कहता हूँ, तो लिहाजा मैं नहीं करता। जामी साहब मेरा एक सवाल ये है कि आप शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं और पब्लिशर भी हैं, सारी बात है, तो किताब का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पहली तो बात ये बता दूं कि मैं प्रोफेशनल पब्लिशर नहीं हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग थे यहाँ पर, शाह कासिम जहांगीरी साहब, उनका हल्का था, मुरीदैन थे उनके। उन्होंने एक दफ़ा ऐसी पता नहीं क्या दिल में ख्याल आया, मुझसे कह रहे मेरी 3 किताबें हैं। शाह साहब मैं कहाँ कर, नहीं आप कर लेंगे, क्योंकि मैं जाता रहता था, गुफ्तगू होती थी, सुनते थे ये। तो साहब वो मैंने 3 किताबें तैयार करके दे दी। जब ले आए तो कह रहे हैं देखिए साहब, मैं कहता नहीं ये कर रहे हैं, कितनी अच्छी किताबें ले आए। उसके बाद फिर मुझे दोस्तों ने जब कहा किसी ने, तो मैंने शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त तक, उससे पहले काम करने से पहले मैं इसके सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। मेरे एक दोस्त थे जावेद ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, वो हमारे कॉटन एक्सपोर्ट में थे, वो किताबें निकालते थे, कंपाइल वर्क होता था उनका, मशहूर हस्तियाँ और मालूमात आमा और ये सब वगैरह। तो वो उनके साथ मैं जाया करता था जब मेरे पास कोई सवारी भी नहीं थी। तो पता चला प्लेट किसे कहते हैं, मिस्र किसे कहते हैं, कातिब कौन होता है, मशीन कौन सी है, वो किस तरह से चलती है, कितने सफ़े, ये सब वाकिफ़ था। तो लिहाजा उन्होंने कहा, तो मैं सोचता हूँ आज कि वो काबिल अजमेरी का शेर याद आता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों,
हादसा एकदम नहीं होता। तो वो ज़फ़र इकबाल का मुझे इनसे मुतारिफ़ कराना, शाह साहब का इस काम में डालना, पता चला कि जब मैं नौकरी से निकल जाऊंगा तो उस वक्त मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में होऊंगा कि सरकारी तो मिलेगी नहीं, प्राइवेट वाले पैसा नहीं देंगे इतना। तो लिहाजा यही काम फिर मुझे दोस्तों ने कहा तो मैंने किया। तो ये मैं एक तो है शौकिया। अच्छा, अब सवाल ये कि किताबों का मुस्तकबिल, तो इसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि गज़ल का मुस्तकबिल, शायरी का मुस्तकबिल, अफसाना निगारी का मुस्तकबिल, किताब का मुस्तकबिल, कारी का मुस्तकबिल, लिखने वालों सबका मुस्तकबिल चलता रहेगा। ऊंच नीच आती रहेगी, तेज़ी और कमी आती रहेगी, मगर ये चलता रहेगा। जी जामी साहब, एक और सवाल है कि आजकल का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो मुसन्निफ बनकर या पब्लिशर बनकर किस तरह से कमा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। व्हाट्सएप आप देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, आप देखें आजकल पंजाब से इतने नौजवान शायरी कर रहे हैं, कमाल की शायरी कर रहे हैं। कितने, पंजाब का पूरा पंजाब, ये नहीं सिर्फ लाहौर नहीं, ठीक है। इसी तरह आप इंडिया में जाइए, वहाँ पर लड़कियाँ, 2-3 लड़कियाँ हैं, हिंदू लड़कियाँ, वो एक का नाम हाँ बाबर, वो देखिए कैसी शायरी कर रही है। इस तरह और वहाँ पे बहुत शायरी हो रही है। अच्छा, वहाँ तो खैर साल में मेरे ख्याल 12 ही मुशायरे होते हैं, बड़े कवि सम्मेलन के तर्ज के, और यहाँ भी कर रहे हैं। हमारे कराची के 3-4 लाहौर पे जाके बहुत मशहूर हो गए, ठीक है ना। तो शायर बन के या मुसन्निफ बन के तो वो खुश हैं, क्योंकि अब ये दौर आ गया इनका। इससे पहले कभी नौजवानों को इतना ही शायरी करते नहीं सुना होगा, ना इतने लोगों को जमा होते सुना होगा। शायरी तो की जा रही है, मेरा सवाल ये था कि वो उससे कुछ माली मुफाद हासिल करते नहीं, वो उनको है, शायरी में तो है। अगर आपकी गज़ल हो गई और आपको किसी ने भी बुलाया तो आपका एजाज़ियत तैयार हो गया, ये तो मिलता है। मगर ये हवाई रोदी है, आज चल रही है, कल नहीं होगी। और जहाँ तक किताब के बारे में पूछा कि वो पब्लिशर बन के, तो पब्लिशर बन के कमा नहीं सकता, उसके कमाने वाले लोग दूसरे होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो दूसरे लोग होते हैं जो इसकी सारी जो है ना वो राजों से वाकिफ़ होते हैं, किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर या किसी भी कारोबार में शराफत का अंसर जो है ना वो तकरीबन 40% होता है, बाकी जो समझ लें आप। तो ये नाशिर बन के, वैसे तो खैर बहुत से नाशिर बन गए। अभी मेरे कराची में 4 आदमी को जानता हूँ और 3 ख़वातीन को जानता हूँ जिनको कल तक वो नाशिर नहीं थी, वो बन गई। मतलब जैसे मैं हल्के में जा रहा हूँ, ये मिले, मैंने कहा हाँ भाई आपकी किताब, या उन्होंने कहा मैं छाप दूंगा, इन्होंने कहा छाप दो, इन्होंने कहा इन्होंने छाप दो। तो यहाँ 3 ख़वातीन और 4 मर्द ऐसे हैं जिनको कभी मैंने आज तक, मेरी तो उम्र गुजर रही है ना, नहीं सुना, अब वो किताबें छाप रहे हैं। तो वो शौकिया कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद कामयाब हो जाए तो वो कमाने भी लगे। अच्छा जामी साहब, एक और सवाल ये है कि बतौर पब्लिशर बन के अब पैसा अगर कमाएं तो इसके लिए शराफत ज़रूरी है या शर और आफत ज़रूरी है? मेरे भाई, सिर्फ कमाने के लिए नहीं और अब सिर्फ किताबों के लिए नहीं, ज़िंदगी का जो भी कारोबार है, जो भी कारोबार, छोटे ठेले वाले से लेके और एक ब्रांड कंपनी वाला, ये सब में शराफत तो नहीं है, शर और आफत है, मगर वो उनके हवाले से है कि वो अपना शर कितना इस्तेमाल करते हैं और आफत अपनी कितनी करते हैं। आफत होती है हमारे जैसों के लिए, जो किताब छपाने जा रहे हैं या जो कपड़े खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए वो आफत हो जाती है कि वो बोलता कुछ है देता कुछ है। और वो शर इसलिए कि वो शर नहीं करेगा तो खाएगा क्या। चलते चलते एक सवाल मेरे ज़हन में था। हाँ, आपने जैसे बताया आपके बड़े भाई फयाज हाशमी साहब, आपके बच्चों के नाम मैंने देखा अपनी किताब में लिखा हुआ है, आपने नाम सरवर पे इंतसाब में लिखा हुआ है। हाँ, तो वो भी हाशमी है। हाँ, आपका नाम सैयद मेराज जामी। अरे साहब, ये तो मुझसे ऐसी गलती हो गई जो जब इसका मुझे इदराक हुआ, जब से आज तक मेरे सीने में कांटा है। मैं बताता हूँ इसकी वजह। पहले मैं हाशमी लिखता था और मैं उस वक्त जब शायरी शुरू की थी, वही बजगाना शायरी, तो बड़े अजीब अजीब तखल्लुस रखता था। अमरद हाशमी, अच्छा अमरत किसी को बोलो तो वो अमरूद पड़ेगा। मैंने देखा था कि अमरत के माने क्या, नोखेज, तो वो मैंने रखा। और इस तरह कई लिखा तो हाशमी। असल नाम तो सैयद मेराज मुस्तफ़ा हुसैन हाशमी, तो ये ओरिजिनल नाम है। फिर क्या हुआ कि मुझे, जिसका मैं रूहानी मुरीद हूँ, और वो है हज़रत अब्दुल रहमान जामी। जामी साहब से और रूमी, ये 2 तो मेरे समझो हैं, मगर जामी से पहली मुलाकात मेरी ऐसी हुई कि सुबह के वक्त
जैसे आप भी वहाँ पर रहते हो बहावलपुर में, सब घरों में छतों पे लोग सोते सही। हैं और वो छत एक दूसरे को देख नहीं सकते। सही, बिल्कुल। आवाज़ें औरतें करती हैं, बातें करती हैं, इधर से उधर सवाल जवाब हो रहे हैं, मगर वो नहीं होती, इतनी ऊंची होती। तो हम लोग वहाँ सोते थे गर्मियों में। मेरे वालिद उतर के रेडियो ऑन करते थे। आप ये दादू की बात करें। दादू की बात करो, रेडियो ऑन करते थे, फिर वो कुरान हकीम, हमारी ज़िंदगी, तलावत और ये वो, फिर एक नात, फिर एक हमद, और फिर उसके बाद खबर, ये आती थी। तो मैं ऊपर लेटा हुआ होता था, स्कूल का तालिब इल्म था, तो मेरी आंख उस वक्त खुलती थी जब वो एक नात पढ़ी जाती थी, नसीमा जानिबे बथा गुजर कुन ज़हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। मुझे कुछ नहीं पता इसका माने क्या था उस ज़माने में, फारसी क्या जान, मगर मैं ये सोचता था कि वो मुझे मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम आ रहा है, बथा भी पढ़ रहा था उस वक्त बथा, यसरबी तो पढ़ते थे हम लोग, ये मदीना मक्का तो बाद में हुआ, और दो भी नाम समझ में आ गया, और तीसरा नाम आता था नसीमा। तो मैंने कहा ये नसीमा कौन है जिसको कहा जा रहा है कि तू बता जाके हुजूर को सलाम कर। सही। अब मैं इस चक्कर में था, ये नसीमा कौन है। खैर मैं अपने पढ़ता रहता था ये, मगर सुबह के वक्त आंख उससे खुलती थी, फिर मैं नीचे उतरता था और फिर अपने तैयार करके ये नाश्ता वाश्ता करके फिर स्कूल चले जाता था। ठीक है।